آج خدا کے کلام میں سے جو ہم سیکھیں گے وہ ڈبل برکت کے تعلق سے ہیں. جو لوگ شائن اسٹار ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو آج اس میٹنگ میں ویلکم کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خدا سب دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے گا. تو خدا کے کلام میں سے جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کو میں کہتا ہوں ڈبل ڈبل. سب کہیں ڈبل ڈبل. ان کے بعد میں کہیے ڈبل ڈبل. ہم اس ہر کوئی صرف ایک بار برکت نہیں لینا چاہتا، بلکہ ہم چاہتے ہیں خدا میں ڈبل ڈبل برکت ہے. سب کہیں ڈبل ڈبل. ان کے بعد میں کہیے ڈبل ڈبل. خدا کے کلام افسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت میں درج ہے. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. ایک بار پھر سے افسیوں 3 باب کی 20 آیت. اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اونچی بات میں کہیے بہت زیادہ. ہمارے خیالوں سے، ہماری سوچوں سے، اس سے زیادہ کہ ہم اس سے جو کچھ مانگتے ہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے وہ ہر ایک خیال سے، ہر ایک سوچ سے کہیں بڑھ کر ہمیں فراہم کر سکتا ہے. وہ اپنی قدرت سے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے، وہ جو صاحب کرامات ہے، جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمارے مانگنے سے کہیں بڑھ کر، ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر، ہمارے خیالات سے کہیں بڑھ کر ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو ایک چیز فراہم کرے، 2 چیزیں فراہم کریں، تو ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو آپ کو ڈبل کر کے، ملٹی پلائی کر کے واپس کرتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم خدا کے کلام ایوب 42 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو درج ہے کہ ایوب کو خدا نے پہلے سے 2 چند لٹایا. سب کہیں 2 چند. 2 چند لٹایا. جو بھی اس سے چھینا گیا، جو کچھ بھی وہ کھو چکا تھا، ایوب کو خدا نے 2 چند واپس کیا. اور اسی طرح سے جب ہم دوسرا تواریخ 1 باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر درج ہے کہ سلیمان کو، جو کہ خدا اس کے ساتھ تھا، سلیمان کو خدا نے بڑی رعایا دی، بہت بڑی حکومت دی، اور اس کا شمار بہت زیادہ تھا، زروں کی مانند تھا. اور خدا نے جب سلیمان سے پوچھا، سلیمان نے 1000 جو جانور تھے ان کی قربانی کی، اور آخرکار خدا نے سلیمان سے کلام کیا. خدا نے سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو سلیمان نے کہا کہ تو نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر مجھ پر مہربانی کی ہے، اور دیکھ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی رعایا دی ہے کہ وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. لیکن اے خدا، ضرور ہے کہ تو مجھ کو حکمت اور معرفت عنایت فرمائے. تو میرے خدا نے سلیمان کو فرمایا کہ اے سلیمان، تو نے اپنے لیے نہ لمبی عمر کو مانگا ہے، نہ دولت کو مانگا ہے، نہ عیش و عشرت کو مانگا ہے، نہ تو نے اپنے لیے اپنے دشمن کی موت کو مانگا ہے. اور چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، چونکہ تو نے مجھ سے حکمت مانگی ہے، تو نے صرف حکمت اور معرفت مانگی ہے، لیکن چونکہ میں ڈبل ڈبل کر کے واپس کرتا ہوں، تیری درخواست میں صرف حکمت اور معرفت ہے. لیکن اے سلیمان، حکمت اور معرفت تو میں تجھے دیے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ تجھے دولت بھی، طاقت بھی اور عزت بھی ایسی بخشوں گا کہ دنیا میں آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ملی ہے. ہاللیلویا. جب آپ اپنے خدا سے ایک چیز مانگتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں کہ خدا صرف مجھے حکمت اور معرفت دے دے، وہ آپ کے لیے اور زیادہ بڑھ کر مہیا کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس سے مانگتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے لب اس سے مانگنے کے لیے کھل جائیں،
वो खुदा तो पहले से ही हमारे लिए हमारी नजरों से ओझल होकर, हम बैकग्राउंड में होते हुए, पस मंजर में होते हुए पहले से ही हमारे लिए काम कर रहा होता है, वो हमारे लिए फराहम कर रहा होता है। वो पहले से ही अपने नजरे करम को जारी किए होता है। जैसे सुलेमान को उसने पहले से ही शोहरत दे रखी थी, उसको बादशाह बनाया था, जैसे ही उसने हिकमत को मांगा, खुदा ने उसको और डबल करके लौटाया। हालेलुया। इसी तरह से जब हम यूहन्ना 4 बाब उसकी 46 आयत को देखते हैं, कोई भी आप में से निकाले यूहन्ना 4 बाब और उसकी 46 आयत, सब ऊंचे आवाज में कहिए डबल डबल, ऊंचे आवाज में कहिए डबल डबल। कौन लोग चाहते हैं कि खुदा उनको डबल डबल दे? हालेलुया। 46 आयत यूहन्ना 4:46। बस वो फिर कनाए गलील में आया, जहां उसने पानी को मैल बनाया था, और बादशाह के एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर, उनकी आवाज में कहिए सुनकर, उनकी आवाज में कहिए सुनकर, वो ये सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि मरने को है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखोगे हरगिज़ ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे को मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया कि यीशु ने सो कही और वो चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजूदा था यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। सब कहें आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह का एक मुलाजिम है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कानाए गलील में आता है, और वो जब कानाए गलील में आता है और वो कफरनहूम से, सबके कफरनहूम से तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफर तय करके, यानी वो सुबह 9 बजे निकला होगा और शाम के 5-6 बज गए, और इतना लंबा सफर तय करके तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफर तय किया, ये सुन करके कि वो अपने लोगों के दरमियान कफरनहूम में उसने ये सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से उसी जगह पर आए हैं जहां पर उन्होंने पानी को क्या बनाया था, मैल बना दिया था। और बादशाह का मुलाजिम जो बादशाह के पास खड़ा रहता है, वो कफरनहूम से 8 से 9 घंटे का सफर तय करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, इसलिए ताकि वो अपने बेटे की शिफा का एहतमाम करवा सके। वो बादशाह का मुलाजिम होते हुए इतना प्रोटोकॉल रखने के बावजूद, इतनी शान शौकत रखने के बावजूद, उसने अपने आप को, अपने ऑनर को, अपने गरूर को, अपनी पोजीशन को नीचा किया, और पैदल सफर करके 9 घंटे के बाद जब जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने कहा कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदावंद, मैंने ये सुन रखा है कि तू तो पानी को भी मैल बना देता है, तू तो पानी की भी नेचर को बदल देता है, तू तो बड़े बड़े मौजूदात करता है, तू साहब करामात है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे आका, अगर ये मुमकिन हो सके कि तू इस जगह से, जिसे हम जिस शहर का नाम रखा गया है, और उस शहर में हम देखते हैं कि तूने पहले भी
मौजूदा फरमाया है, और उसी मौजूदे की वजह से, इसी वजह से कि तूने जो कनाए गलील में किया है, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। मैंने ये सुन रखा है कि तू पानी को मैं में बदलता है, सबके पानी को मैं में बदलता है। कनाए गलील में तूने पहला मौजूदा फरमा दिया है, तूने पहला मौजूदा किया है, तूने पहले से ही पानी के नेचर को बदला है, इसलिए खुदावन क्यों ना दूसरा मौजूदा भी तू कर दे। और मेरा बेटा जो कि बीमार है, देख खुदावन ने 10 घंटे का तकरीबन सफर करके पैदल आपके पास आया हूँ। वो खुदावन यीशु मसीह को अपना शेड्यूल दे रहा है, अपना स्केड्यूल दे रहा है, और वो अपने प्लान को लेकर इतना लंबा सफर करके खुदावन के पास पहुंचा है, और अपने प्लान के मुताबिक खुदावन को कहता है कि कानाए गलील से हम सफर शुरू करते हैं, पहाड़ी इलाके से नीचे उतरते हुए हम कफरनहूम में आते हैं, जो कि पहाड़ जो कि समुद्र के किनारे पर है। हम तकरीबन 3 से 10 घंटे का पैदल सफर करते हैं। वो जो बादशाह का मुलाजिम है, उस बच्चे का बाप है, अपना मंसूबा लेकर खुदावन के पास जाकर अपनी तकमील करवाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये किसके सामने है। वो ये सोच रहा है कि गोया मैं अपने जमीनी बादशाह के सामने हूँ। मेरे अजीजों, वो ऐसे बादशाह के सामने है जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है। खुदावन ने कहा कि मुझे लगता है तुझे अपने बादशाह की आदत है, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि ये जो तेरे सामने है, ये बादशाहों का बादशाह है, ये शहनशाहों का शहनशाह है। ये जो फरमा देता है सब कुछ हो जाता है। ऐ मुलाजिम, तू मुझे कहता है कि 9 घंटे के बाद आकर तेरे बच्चे को शिफा दूं, तू मुझे अपना शेड्यूल देता है। मैं कल का खुदा नहीं हूँ, मैं आने वाले वक्त का खुदा नहीं हूँ। तू मुझे वो कहता है कि मैं जो तेरे लिए आकर करूं, लेकिन देख, क्योंकि मैं साहिबे करामात हूँ और मैं साहिबे कौल हूँ, और अभी से फरमा देने से सब कुछ हो जाएगा। खुदा ने कहा कि जा, तेरा बेटा जीता है। कलाम में लिखा है कि उसने इस बात का यकीन किया। जब वो अपने घर जा रहा है, रास्ते में मुलाजिम आता है, कहता है कि तेरा बेटा जीता है। वो कहता है कि कब मेरा बेटा जीता हुआ, कब वो तंदुरुस्त हुआ? उसने कहा कि उसी घड़ी, कल के दिन, ये वो पहल है, ये वो वक्त है। और उसने इस बात का यकीन किया। 85वीं आयत में वो यकीन करता है, 53 और 54 आयत में वही शख्स एक बार फिर से यकीन करता है। पहले लफ्ज यकीन इस्तेमाल हुआ, दूसरी बार लफ्ज ईमान इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे लोग हैं जब पहले यकीन करते हैं कि यीशु खुदा है, यीशु जो कहता है वो हो जाता है, लेकिन जब वो निशान को देखते हैं, जब मौजूदा को देखते हैं, तो फिर वो उसके आगे सरनगू होते हैं, वो ईमान लाते हैं कि यही जिंदा खुदा का बेटा है। और उसे जो हम अपने मंसूबे देते हैं, अपने प्लान देते हैं, अपने बेटे को 8 घंटे तक फिर भी वो तब में रखना चाहता है। अगर यीशु उसके मंसूबे को मानता तो 1 दिन तक फिर भी उसका बेटा बुखार में रहता। लेकिन ये वो है कि जिसके पास जैसे ही कोई आता है, वो 8 घंटे का और इंतजार नहीं करवाता, 24 घंटे का और इंतजार नहीं करवाता। वो कहता है कि नो, दिस इज द टाइम, तेरा बेटा अभी जिंदा है। हालेलुया। जब हम खुदा से मांगते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, अगर आप कहते हैं कि खुदा मुझे 100 रुपया दे दे, वो कहते हैं मैं तुझे 1 लाख दूंगा। अगर आप कहते हैं कि खुदा मुझे 1 घर दे दे, वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे वसीला से सब कुछ खर्च दिया गया है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि हर एक चीज उसके वसीला से, यानी हर एक चीज बेटे के वसीला से तख्लीक की गई है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप उसके पास जाते हैं तो ये वो खुदा है जो आपको डबल डबल करके, 2 चंद करके, जब काल भी पड़े, जब याकूब ने खुदा की हजूरी में खेती की, उसने जब बीज बोया तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने जबकि चारों तरफ काल था, चारों तरफ लोग भूख से मर रहे थे, जिंदा खुदा ने अपने बंदा याकूब को 100 गुना लुटाया। हालेलुया। मुश्किल कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, मामलात कैसे भी हो, कभी भी हालात को मत देखिए,
हालात आपको स्वीकार न करे बल्कि आप हालात को स्वीकार करें। हालेलुया। चारों तरफ काल, लेकिन याकूब को फिर भी खुदा ने जमीन में से फराहम किया। हालेलुया। जो उसके लोग होते हैं उनके लिए वो सब कुछ करता है। क्या आप मसीह के हैं? क्या आपने ये सुनकर कि वो कनाए गलील में मौजूद है, कभी अपने बच्चों की खातिर, क्या ये सुनकर के कि वो कनाए गलील में है और दूसरा मौजूदा मेरे लिए वो कर सकता है, क्या कभी 8-9 घंटे का सफर करके अपनों की खातिर, प्यारों की खातिर कभी मसीह के पास आए हैं? क्या आप में से कभी कोई खुदावंद की हजूरी में जबकि 10 बजे का टाइम है अपने अजीजों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, क्या कभी आपने आधे घंटे का भी सफर किया और खुदा के घर में वक्त पर पहुंचे? ये शख्स अपना टाइम टेबल, अपना वक्त खुदावंद को बता रहा है, कहता है कि खुदावंद चलकर इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए, खुदावंद वो बहुत बीमार है, खुदावंद वो तप में है, वो तो मरने को है, 9 घंटे का सफर करके आया हूँ, मेरे पास ना कोई मोबाइल है, मेरे पास कोई फेसबुक नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा भी मर भी चुका है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मरने को है। ऐ खुदावंद तू जल्दी कर, ऐ खुदावंद वक्त कम है, अपना वक्त उसको देता है। लेकिन ये वो है जो फरमा देता है तो सब कुछ हो जाता है। उसने कहा कि इससे पहले कि ये सफर तू दोबारा से करे, तुझे लगता है कि ये तेरे लिए नुकसान है, लेकिन ये वो खुदा है जो नुकसान को नफे में बदलता है। इतना लंबा सफर करके जब वो उसी सफर से वापस जाता है तो भी अपनी तकमील नहीं करता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। खुदा उसको पहले से ही उसकी दुआ का जवाब दिए देता है और कहता है कि तू मुझे कहता था कि मैं जाकर करूं, लेकिन जब तू मेरे साथ बात कर रहा था मैं तो रूम में पहले ही तेरे बेटे के पास पहुंच गया, तो मुझे 8 घंटे के बाद लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं तो अभी भी वहां पर मौजूद हूँ। जब तेरे साथ बात करता हूँ मैं तेरे बेटे के पास भी हूँ और अभी से मैंने उसको शिफा दे दी है। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। क्या हम ये सुन करके कि वो उस जगह पर है, क्या हम कभी कोशिश करते हैं उसके पास जाने की? 10 घंटे का सफर किया कभी आपने? पहले चर्च में आने के 10 बजे का टाइम है, 11 बजे आते हैं, अपना टाइम खुदा को देते हैं, ताबेदारी नहीं है, अपने शेड्यूल से खुदा को चलाते हैं। ये वो है जो बादशाह का मुलाजिम है, उसको शेड्यूल और टाइमिंग्स का पता है। लेकिन चर्चिस के अंदर वो हैं जिनको ना अपने टाइम का पता, ना बादशाह के टाइम का पता है, इसलिए मौजूदा नहीं पाते। कम से कम उस शख्स में ये बात थी कि वो टाइम का पक्का था और शेड्यूल खुदा उनको दे रहा था। आपका क्या टाइम है? आपकी क्या कमिटमेंट है? आप किसके लिए खुदा के सामने जाते हो? क्या आपके अंदर बोझ है? क्या आप डबल बरकत लेना चाहते हैं? क्या आपकी कोई कमिटमेंट है? क्या हालात ने आपको शिकार किया हुआ है? जो कोई वक्त को कंट्रोल करता है, जो कोई वक्त पर काबू पाता है, तो जाहिर है कि सारे हालात वक्त के मुताबिक होते हैं, वो वक्त के ऊपर ही गालिब आते हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने लिए कुछ कहलवाया है? खुदावन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, खुदावन 9 घंटे का सफर फिर अकेले करूं, फिर लंबा सफर करूं, मैं तो प्रोटोकॉल वाला आदमी हूं, बादशाह का मुलाजिम हूं, कम से कम आप मेरे साथ चलें। लोग जाने के यीशु लंबा सफर करके जा रहे हैं। खुदावन का नो 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 नो, आई विल नॉट वॉक अगेन, जस्ट आई विल से that your son is healed already, और जैसे ही मैं कह दूंगा ये सब मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप खुदावन से कहलवाने के लिए आते हैं? क्या खुदावन से बरकत लेने के लिए आते हैं, या फिर जैसे आते हैं वैसे लौट जाते? क्या आपने कभी ये कहा कि खुदावन में खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खुदावन मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए ये काम कर दें, मेरे लिए ये मुमकिन कर दें? जब वो शख्स खुदावन से बात कर रहा होगा वहां पर कितने और लोग होंगे, लेकिन उसने खुदावन की तवज्जो अपनी तरफ ले ली और खुदावन ने उसे कहा कि निशान और मौजूदा देखना चाहता है। उसने कहा कि खुदावन
बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बेटे को मरने से पहले पहुंच जाए। खुदा ने कहा देख तेरे अंदर ईमान तो है, इसलिए मैं कह देता हूँ। खुदा ने कहा कि वो जीता है, और बाइबल में लिखा है कि वो इस बात का यकीन करने लगा जब वो सफर कर रहा है उस आयत के ऊपर, उस लफ्ज, उस जुमले के ऊपर जो खुदा ने कहा कि तेरा बेटा जीता है। फिर से रास्ते में जब मुलाजिम से मिलता है, कहता है क्या मेरा बेटा जीता है, अपने यकीन की वेरिफिकेशन करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तो उसका अपना बादशाह नहीं है, बल्कि ये जिंदा खुदा का बेटा बादशाहों का बादशाह है। और कलाम में लिखा कि जब उसको पता चला कि ऐन ये वही कड़ी है, तो पूरे खानदान के साथ वो यीशु पर ईमान लाया। हालेलुया। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, जोरदार ताली बजाएं उसके खिलाफ। जब उसने यकीन किया और यकीन करने के बाद ईमान लेकर आया, उसको कबूल किया, नए सिरे से पैदा हुआ, उसने ईमान रखा कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, बादशाहों का बादशाह है, तो पूरे घराने समेत उसने खुदावन को कबूल किया। आप में से कितने हैं जो पूरे घराने समेत खुदा को कबूल करते हैं? कितने हैं जो उसके टाइमिंग के ऊपर चलते हैं? जो उसने फरमा दिया उसी वक्त के ऊपर वो ईमान लाया। क्या आप उसके वक्त के मुताबिक चलते हैं? क्या उस वक्त को जांचते और पहचानते हैं? क्या आप अपने खुदावन के साथ हैं या अपने सोचों में मगन हैं, अपने हालात में मगन हैं, अपने ख्यालात में हैं? मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आज अपने खुदावन को अपने गले से लगा लीजिए। वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है, और जो पहली बार आप यीशु को कबूल करना चाहता है, आज पहली बार अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है, उसके लिए मौका है कि अपने पांव पर खड़ा हो। जो पहली बार खुदावन यीशु को कबूल करना चाहता है वो खड़ा हो। उस आदमी ने इतने लोगों का सामना किया, तकरीबन 10 घंटे का सफर तय किया और किसी की परवाह नहीं की। क्या आप में से कोई यीशु को कबूल करना चाहता है? वो खड़ा हो गया। आप में से कोई और खुदावन यीशु को कबूल करना चाहता है? पहली बार जो कबूल करना चाहता है, शर्माए नहीं, अपनी आंखें बंद करें, खड़े हो जाइए। जो पहली बार कबूल करना चाहता है, फर्स्ट टाइम, जो इस वक्त शाइनस्टा टीवी को देख रहे हैं, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। अगर आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे इस दुआ को करें। अपनी आंखें बंद करें, जितने लोग यहाँ पर बैठे और जितने खड़े हैं, जिन्होंने खुदावन को आज पहली बार जिंदगी दी है, मेरे पीछे कहीं है आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे बेटे और हमारे खुदावन यीशु मसीह के लिए हम ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए जान दी है। वो बादशाहों का बादशाह है। ऐ आसमानी बाप, ऐ आशिक दिन, जिस पर ईमान लाता हूँ और तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तेरे पीछे चलूंगा। आमीन, आमीन। आप देख रहे हैं शाइनस्टा टीवी, पाकिस्तान फर्स्ट क्रिश्चियन यूथ चैनल।